शिल्पा जी होल्ड, अरे मोबाइल मत बताओ बीच में। शिल्पा जी होल्ड होल्ड होल्ड। भाई आप लोग फ्रेम में आ रहे हो, क्या कर रहे हो? प्लीज शिल्पा जी भाई आगे मत जाओ, भाई आगे मत जाओ। शिल्पा जी लेफ्ट साइड, मैम लेफ्ट साइड, शिल्पा जी सेंटर में आपके सामने है मैडम। हाँ जगह बना। मिली होल्ड। शिल्पा जी ये अच्छा है। यहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा। बस 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 बस। आई थिंक वहाँ पे ना फाउंडर की स्टैचू के नीचे वुड बी बेटर। मेरे कैमरे में देखिए। शिल्पा जी सेंटर मैम सेंटर। अरे भाई आप लोग रुको ना। कैन यू प्लीज शिल्पा जी यार प्लीज गिव स्पेस, प्लीज गिव स्पेस। शिल्पा जी यहाँ पे देखिए। मेरे कैमरे में ना। शिल्पा जी मेरा कैमरा। शिल्पा जी यहाँ पे। शिल्पा जी यहाँ पे। शिल्पा जी दिस वे। मेरे में शिल्पा जी उधर। शिल्पा जी यहाँ पे। शिल्पा जी बेटा वेट वेट वेट। शिल्पा जी यहाँ पे। शिल्पा जी यहाँ पे। यहाँ से सीन बना। शिल्पा जी। शिल्पा जी धन्यवाद। शिल्पा जी थैंक यू सो मच। निशांत, निशांत, चलिए थोड़ा सा स्पेस दीजिए। Of our appreciation. This memento captures the presence of our venerated founder, Sri Yogendra Ji, serving as a timeless tribute to his signature of the Yoga Institute to do the honors. Thank you, Rishi Ji. A masterpiece that is more than just a book of mouth-watering sattvic recipes. It pays homage to our beloved Guru, who has shared her wisdom, topped with decades of experience, and stirred in some creativity, and opened the doors of much-awaited the Sattvic kitchen. Please join me in a rousing round of ovation and applause. Thank you, Ma. Thank you, Shilpa ji. सेंटर। कैमरा नीचे लो ना। शिल्पा जी। To pioneer the realm of health on DVD on yoga along with her app Simple Soulful. Shilpa ji, Shilpa ji has also authored books on health, fitness for achieving their fitness goals. Today, we are honored to have her join us on stage, where her fitness journey takes the center stage, inspiring us all to embrace a much more healthier lifestyle. Let's welcome Shilpa ji with a much bigger round of applause and we request her to share a few thoughts with us. तो मैंने सोचा इंट्रो के लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो क्योंकि मुझे सात्विक खाना बनाने में और खाने में बहुत रुचि है, लेकिन जितना नॉलेज एक्चुअली होना चाहिए वो है नहीं मेरे पास। तो मैं ढूंढती रहती हूँ, मैं खोजती रहती हूँ कि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले। मुझे पता है कि
the doshas and all of that. So kapha, pitta, vata. मुझे अपना भी पता है कि अपना मेरा दोष क्या है. But आप believe नहीं करोगे, हंसा जी's repertoire is just never ending, which is a huge compliment. सब लोग उसको हंसा बुलाते हैं. वो सबकी माँ ही है. I know सब लोग जानते हैं कि उन्होंने काफी सारे बुक्स लिखी हैं. She has co-authored maybe 100 books and written over, she's dabbled with many subjects: yoga, wellness, spirituality, meditation, and now sattvic food. But what really amazed me is her academic qualifications. She's a B.A. qualified. तो हंसा माँ, आपने क्या नहीं किया है, ये बता दीजिए मुझे. मैं वापस आऊँ और हंसा जी से मैं बात करूँ और थोड़ा सा वक्त गुजारूँ उनके साथ, because she's got such amazing, she's got an infectious energy, you know. जब वो बात करती है मेरा मन करता है, हंसामा, when you thought that I was worthy enough to come here and launch this beautiful book, I want more people to read it, and I've always believed that you are what you eat. You can either make, you must accept it. It is, both our I were actually discussing this in the room when she complimented me on my passion for yoga and whatever I'm doing. I explained to her that it never came from a contrived place. Actually, it came from a sense of pride as an Indian, that how we look up to maybe people from other nations. I want to talk about the benefits of ghee, and then we will buy it. And once we do that, we must spread the word, and then we have a better generation. So the Sattvic Kitchen is doing exactly that, going back to healthy eating, going back to simplified cooking, or go by how the use of a spice can enhance or deteriorate your energy levels. You know? So you have to, once you have an understanding of that, you will be able to cook better, and you will be able to enjoy your moods better. Your husbands will feel much better, because it all depends on us. We are the ones that actually, the women in this room are the ones that actually make the choices. Thank you, Shilpaji. Thank you so much. You rightly said the key is balance. And we are very thankful to get some nice tips from her. 70%, and not just run to asana classes only always, but focus on other aspects of yoga also, along with nutrition. Yeah? Thank you so much. We really appreciate your kind words. And of course, we all share a very common faith in yoga, and that is why we are here on this evening. Hansama's life has been a testament to the transformative power of yoga, and her journey has been a source of inspiration for all who have had the privilege of crossing her path. Her wisdom, the well-being of humanity, has touched hearts and minds across the globe. We are blessed to be a living embodiment of yogic way of life. Her presence continues to be a source of enlightenment, our spiritual torchbearer, our beloved Hansama, to share pearls of wisdom and honor this occasion. Thank you. Thank you, Deepa. Thanks a lot that you are here. One of your friends some 4 years back
told me that माँ अच्छे लोगों को they have to suffer much more. They are good people. Why should they suffer so much? And I said that when they know how to handle any ups and downs very gracefully, very strongly, and they become stronger day by day. And that's what. So I saw problems coming and going. Life is full of that. Every human goes through right. It tells you how to live. And it tells you all these things. We at the Yoga Institute, now all of you are studying here, you know that we talk a lot about mind. Once it Sab Mangal 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 ho. Nabha Mangal ho. Nabha Mangal ho. Nabha Mangal ho. Jal Mangal ho. Jal Mangal ho. Prithvi ka kar kar 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 mangal ho. Sab mangal ho. Sab mangal ho. Sab mangal ho. Chit mangal ho. Vyakti ka kshan kshan mangal ho. Sab mangal ho. Sab mangal ho. Sab mangal 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 ho. Sab mangal ho. Sab mangal ho. Sab mangal 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 ho. Namaskar. On behalf of all present here, we would like to thank Hansama for selflessly guiding us all always. We would like to express our sincere gratitude to Shilpa. शिल्पा जी मुख कैमरा हो गया चलो बाइट बाइट इधर करना The Satvik Kitchen is a beautiful book और मुझे बहुत खुशी है कि हंसामा ने सोचा कि मैं इस बुक को लॉन्च करने की काबिल हूँ तो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो पाया आज का जो इवेंट विथ माय क्रेज़ी स्केड्यूल्स, लेकिन इन्होंने भी वेट किया मेरा। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आयुर्वेदा और योगा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये एक बहुत ही आई फील अंडररेटेड, ये दोनों साइंसेस बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहे हैं हमारे ही कंट्री में, व्हेन द वर्ल्ड इज़ लुकिंग अप टू योगा एंड आयुर्वेदा। तो द सात्विक किचन इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स of the principles of Ayurveda and कि कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना चबाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में उस विषय पे और टिप्पणी देंगी हंसामा। बताइए हंसामा। नहीं, आपने जो कहा वो बहुत सही है।
लेकिन उसके ऊपर एक और बात आती है कि आपके मन की स्थिति क्या है जब आप खाना खा रहे हो। अगर आपको अभी गुस्सा है, चिंता है, तो आप खाना मत खाइए, सिर्फ लिक्विड ले लीजिए, कुछ पी लीजिए, छाछ ले लो, नींबू पानी ले लो, मगर खाना मत खाओ। वो खाना फिर बॉडी में जमा हो जाएगा, पॉइजन की तरह काम करेगा। तो ये माइंड को योग बहुत ज़्यादा मानता है, इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, मन की बात करता है। सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, मगर आपके शरीर के मन की स्थिति। तो ये जब सब जोड़ कर आप कुछ कर रहे हैं और इस किताब में ये सारी चीज़ें बताई हैं तो लोगों को समझ में आएगी। शिल्पा जी, आपके खाने की बात की जाए तो हम देखते हैं कि आपको कोई चीट डे होता है जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेज खाते हैं, बट आपका जो है आपका जो है एग्जैक्टली वजह क्या है कि आप इतनी सब अच्छी तो हर किसी को लगता है कि आप इतनी अच्छी चीज़ खा रही हैं जाके। मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चीट करती हूँ, दूसरे जो हैं वो सिर्फ चीट करते हैं और हफ्ते में एक बार डिसिप्लिन या बैलेंस रखते हैं अपने खाने में। ये फ़र्क है बस मुझ में और उन लोगों में। आई थिंक ज़िंदगी में आप कुछ भी करो अच्छे मन से करो और अच्छा सोचो, और जैसे हंसा माँ ने कहा जब खा रहे हैं तो अच्छा सोच के खाओ, तो फिर वो बॉडी को लगता भी है, शरीर को लगता है। आप जब आप अन्न को देखते हो तो वही अन्न जो होता है वो आपके शरीर पे या तो मेडिसिन का काम कर सकता है या स्लो पॉइजन का काम कर सकता है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कुकिंग इट, हाउ मच यू आर कुकिंग इट, वेयर यू आर बाइंग योर प्रोड्यूस फ्रॉम। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और होम मेकर्स के लिए स्पेशली, और आज के जनरेशन के लिए। जैसे हंसा माँ ने कहा कि बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, भूख लगी पैकेट खोला खा लिया। हम पैकेट के पीछे क्या लिखा हुआ है वो दिखते भी नहीं है। प्लीज़, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ईटिंग इन अवेयरनेस, बी माइंडफुल अबाउट ईटिंग। आजकल के यंगस्टर्स की बात की जाए तो स्ट्रेस बहुत हो गया उनको, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, कितना ज़्यादा जरूरी ऐसे फूड या योगा करना? शिल्पा मैम, आपने ये भी कहा है कि कनेक्टेड टू रूट्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी। तो आजकल ये काफ़ी यंग जनरेशन हो गई जो हमारे बॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री, आप अपनी बात कर रहे हैं, यंग जनरेशन। यस, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रूट्स से नहीं, जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं या कुछ भी चीज़ जो आर्टिफिशियल मत खाइए। यस, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे लास्ट में मैसेज? पैकेट को पढ़िए, अगर आप पैकेट से खा रहे हैं तो उसमें देखिए कि शुगर कंटेंट कितना है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप अपने बच्चों को वो सामान दे रहे हो, क्यों आप घर पे खाना नहीं पका सकते? 2 मिनट की बात होती है। ये जो हम लोग एपैथी दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच, बहुत आसान है एक्चुअली कुक करना घर पे। अपने बच्चों को, अगर हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर और इतनी अजीब अजीब बीमारियां अभी फैल रही हैं, the rate of all these diseases have gone up because of the way we are eating, है ना? मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपना खाना किस में बनाती हैं? घी में बनाती हैं कि घी से परहेज़ है? कभी कभी। आप हेल्दी हैं? हेल्दी मतलब जो हेल्दी चीज़ें हम खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये जनरेशन है तो इसको, ये जो हमारे पुराने टेक्निक्स हैं जो हम लोग 70 और 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, जैसे वो लोग खाते थे, अभी ये आजकल नया फैट शुरू हो गया है, 6-7 मील्स खाओ, तब खाओ जब भूख लगे। क्योंकि किसी ने बोला है कि 6 बार खाओ, इसका मतलब ये नहीं कि 6 बार खाओ। भूख नहीं भी लग रही हो, अगर आप ठूस रहे हैं अपने मुंह में तो क्या फ़ायदा, आप तब खाएं। हाँ, खाने में थोड़ा ही खाओ, बहुत ज़्यादा पेट भर के मत खाओ। सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाया जाता है, पेट भरने के लिए नहीं। तो यंग जनरेशन को ये देखना कि खाली कुछ सॉलिड खा लिया उससे बात नहीं बनेगी, कुछ लिक्विड भी ज़रूरी है, क्योंकि सब स्ट्रेस में है। कौन स्ट्रेस में नहीं है आजकल? इसलिए ज़रूरी है वो स्ट्रेस में फिर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो एसिड का एक ड्रॉप लेके आप अगर कपड़ों पे डालोगे ना तो 4 लेयर ठंडा करके निकल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है, और वो पेट में चला जाता है। आपने लिक्विड कुछ पिया ही नहीं है। प्रॉब्लम ये सब है। इसलिए क्या एग्जैक्ट खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, किस बर्तन में पकाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है सीखना, और इसीलिए ये किताब लिखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।